The topic Bessel differential equation. So, like Legendre differential equation, it is also a special type second order linear homogeneous differential equation. So, today we will discuss about the Bessel solution of Bessel differential equation. Equation x square y double dash plus x y dash plus x square minus n square y is equal to 0. It is called Bessel differential equation. It is Bessel's differential equation where this n is a non-negative real number. Here this n is non-negative real number. So we will discuss about the solution of this differential equation today. Okay, so you can see that we want to find the solution of this differential equation about the point x is equal to 0. So x is equal to 0 is the point for the अच्छा cases discuss करने थे okay so we have already find the initial equation and initial roots okay so after the initial roots लेकिन हमें ये तो लिखना पड़ेगा ना इक्वेशन क्या आ रही थी जनरल सोल्यूशन क्योंकि रेफरेंस रिलेशन फाइंड करना होगा ना एक सेकेंड तो मैं पीपीटी से लिख लेती हूँ क्या आ रहा है m0 टू इंफिनिटी m प्लस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक सेकेंड so let y is equal to summation n going from 0 to infinity cn x to power m plus r where this cm this should be m is c not is not equal to 0. Let it be solution for differential equation 1. So after substituting this value of y in differential equation 1, we get the solution. We get our expression m 0 to infinity, that was m plus r square. M plus r square minus n square cm and x to power m plus r. X to power m plus r plus summation m going from 0 to infinity and coefficient was cm x to power m plus r plus 2 is equal to 0. Say that it is expression number 3. Okay, so you already find the initial equation that was r square minus n square is 0 and initial roots are r is equal to plus minus n. Okay, now to find the other coefficients, we have to evaluate here the recurrence relation between the coefficients of various powers of x. So, in general, here we are equating coefficient of x to power m plus r plus 2 equal to 0. So, equating coefficient of x to power m plus r plus 2 in expression 3. Okay. So what will be the coefficient for x to power m plus r plus 2 here? Yes, we will replace in the first term m by m plus 2. So this will give you m plus r plus 2 square minus n square into cm plus 2 plus cm equal to 0. Okay, from here we get the recurrence relation. ऐसा करते हैं next slide to use कर लेते हैं. This will be cm plus 2 plus r plus 2. Okay. Yes, cm plus 2 equal to cm divided by
m plus r plus 2 square minus n square. Correct? Yes, it will be minus. Okay, it is correct. Say that it is 4. Okay, this is true for all m greater than or equal to 0. So when we are substituting m is equal to 0 in this expression, we will get C2. So C2 will be minus C naught. Okay, we by this recurrence relation we can get the value of C2, C3 and C4, but we did not get the value of C1. So we have to also evaluate this coefficient C1 also. So let's come on the first slide again. So from this expression third, how we can find the C1? After equating coefficient of, you know that you get the initial equation by equating coefficient of x to power r. Okay, so C1 you will get the C1 by equating x to power, next power will be x to power r plus 1. So after equating coefficient of x to power r plus 1 in 3, we will get, substituting r m is equal to 1 here, so we will get r plus 1 square minus n square C1. Okay, and second term, from the second term you will not get the C1, you will not get the coefficient of x to power r plus 1, because this series will be started from r x to power r plus 2. सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे स्टार्ट करिए m इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो टर्म स्टार्ट होंगे, द लीडिंग टर्म विल बी x टू पावर r plus 2. तो you will not get the term x to power r plus 1 from the second term, second expression. ये जो second term लिखा है, यहाँ से आप x to power r plus 1 नहीं मिलेगा. So it will, we will get the x to power r plus 1 only from this first term, and corresponding to n is equal to 1. So that term is r plus 1 whole square minus n square C1 is 0. Okay, so now we have to find the value of the C1. You know that possible value of r here is plus n and minus n. So when you are substituting here n, whenever you are substituting here n, so it will be n plus 1 square minus n square, and this will give you, when you are expanding this term n plus 1 square, this will be n square plus 2n plus 1. यही होगा ना इस टर्म को. फॉर इफ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग है r इक्वल टू n, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है इसमें r इक्वल टू n सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा? इट विल बी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 2n प्लस. इनिशियल इक्वेशन में जो आया था वो यही n था जो हमारा यहाँ पे बेसल इक्वेशन का ऑर्डर दिया. m नहीं n थी, चेक करो. m तो केवल समेशन है. दिस इज द ओनली द डमी इंडेक्स. ठीक है, ये यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है. m तो हमारा यहाँ पे पैरामीटर नहीं है. r वॉज प्लस माइनस n. चेक करना इसको. m तो हम अपने आप से ले रहे हैं ना, हम m की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पे i रख लेते हैं या कुछ और रख लेते हैं. ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल इक्वेशन रूट्स आ रहा है दैट वाज प्लस माइनस n. ओके, तो जब हम यहाँ n सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट आता है 2n प्लस 1, C1 इज 0. और हमने n को क्या कहा था? n इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर. ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 0 भी हो जाएगी तब भी हमारे पास क्या होगा? n की वैल्यू 0 भी होती है तो भी हमारे पास आएगा C1 इक्वल टू 0. यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस n हमारे पास ये जो टर्म आ रहा है 2n प्लस 1, इट विल बी नॉन नेगेटिव फैक्टर. So if it is non-negative factor, so it will imply that C1 is 0. It is C1 will be 0. And if we are substituting here, if we are taking r equal to minus n, यानी दूसरा रूट जो है n equal to r equal to minus n के लिए कंसीडर करें सेम जगह पे, तो ये होगा माइनस n प्लस 1 होल स्क्वायर. इसका भी ओपन करेंगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर C1. n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. फिर क्या होगा? 1 माइनस 2n into C1 0. Again it will be not a non-zero factor. 1 minus 2n into C1
इस आगे उसमें जो 1 - 2n है वो हमारा अगेन क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स दैट C1 इज 0. ठीक है, दिस विल इंप्लाई दैट C1 विल बी 0 फॉर वैल्यू जो इनिशियल रूट्स निकले उनके लिए C1 हमेशा हमारे पास क्या आना है, 0 आना है. ठीक है, तो इस चीज को हमें नोट करना है कि C1 हमारा 0 आ रहा है. चलिए अब बाकी के रेफरेंस से हम कोफिशिएंट्स निकालते हैं. ओके, सो other term will be C2 is we get the C2 by substituting m is equal to 0 in this expression 4. This will give you C2 is equal to C naught and m is equal to 0 will give you r plus 2 square minus n square. Okay, for m is equal to 1, C3 is minus C1 r plus 3 square n square, and you know that C1 is 0 here. C1 अगर 0 है, it means that C1 is 0, it means that C3 is 0. ठीक है, फिर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 पे हमें मिलेगा C4, C4 मिलेगा in terms of C2, it will be minus C2 r plus 4 square minus n square, and in terms of C naught it will be C naught r plus 2 square minus n square r plus 4 square minus n square होगा. इसी तरह हमारे पास C5 लिखेंगे, C5 will be 0. It means that odd coefficient, all the odd coefficients are 0 here. We will have only the coefficient C2, C4, C6, C8 and so on. ठीक है, सो इन सबको हम क्या करेंगे, अपने जनरल सोल्यूशन जो हमने लिया था सेकेंड सोल्यूशन y इक्वल टू समेशन m गोइंग फ्रॉम 0 to infinity Cm x to power m plus r, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो आवर जनरल सोल्यूशन विल बी क्या होंगे हमारा जनरल सोल्यूशन इस केस में, y इक्वल टू C नॉट x टू पावर r, C2 x टू पावर r plus 2, C4 x to power r plus 4 and so on. I have just substituted the value of these coefficients in equation number 2, जहाँ पे हमने एक सोल्यूशन जो है लिया था कि हमारा इसका सोल्यूशन फ्रोबेनियस के हिसाब से हमने यहाँ सोल्यूशन जो लिया है वो क्या, समेशन m गोइंग फ्रॉम 0 to infinity, फर्स्ट स्लाइड पे लिया था. ये देखिए, ये जो सोल्यूशन लिया था इसमें जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ऑड टर्म्स की. ठीक है, तो ऑड वाले सारे 0 हो गए और हम C2 C3 इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे. इनिशियल रूट्स निकाले नहीं थे, इनिशियल रूट्स ही तो रखते हैं. आर क्या है, आर में जब हम सब लोवेस्ट पावर जो है जब इक्वेट करते हैं एक्स की 0, कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स इन 0, दैट गिव अस इनिशियल इक्वेशन. दैट इनिशियल इक्वेशन इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर मिलती है, तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दो इनिशियल रूट्स मिलते हैं. शायद तुम्हें पिछला याद नहीं है, एक बार पीपीटी को हम देख लेते हैं. ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड देखो, ये हमारे पास आया था वैल्यू. ठीक है, एक सेकेंड तुम जो कह रहे हो उसको भी बात करते हैं. C1 is 0 for all value of r consider here. Okay, आप जो कह रहे हो चलो, ओवरलैप क्यों हो रहा है, मैंने अच्छा उस पिछली स्लाइड पे कुछ कर दिया था. क्या था हमारे पास इक्वेशन आ रही थी r plus 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर C1 is 0. ओके, इसके लिए बात कर रहे थे. ठीक है, हम r की वैल्यू पॉसिबल हमारे पास n है और माइनस n. ठीक है, ये दो रूट्स हैं हमारे पास.
ठीक है, r इक्वल टू n के लिए हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर माइनस n के लिए हम बात कर रहे हैं, तो माइनस n के लिए बात करते हैं, माइनस n प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं हम n माइनस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर c1, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी राइट एज n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 प्लस n c1, ओके, ठीक, माइनस 2n माइनस 1 c1, ठीक है। 2n माइनस 1 c1, तो यहां से इसको जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 इज 0, यानी n इक्वल टू माइनस 1/2, सॉरी 1/2, सॉरी 1/2, ठीक है, इट विल बी 1/2, ठीक है। n अगर हमारे पास 1/2 आता है तो ये हमारे पास c1 जो होगा वो हमारा ये टर्म जो है c1 में मे भी पॉसिबिलिटी है, पर जब n इक्वल टू 1/2 आएगा, माइनस n हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। अब इसके लिए जब हम कल कर रहे थे केस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे n और -1 का, वो एक इंटीजर आएगा, ठीक है, वो एक इंटीजर आएगा। तो n इक्वल r इक्वल टू माइनस n के करस्पॉन्डिंग इस केस में हमारे पास एलआई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा, फिर आते हैं हम अपने उस पे। तो ये हमारे पास उसके अलावा सब कहीं हमारे पास ऐसा आ रहा है वैल्यू, ठीक, उसको केस को अलग हम कंसीडर करेंगे बाद में। जैसे सेकंड करते हैं उसमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट सोल्यूशन से ही निकालेंगे, पार्शियल जैसे करते थे विद रिस्पेक्ट टू आर करके, ठीक है। सो दिस विल बी अवर सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दैट विल बी c0, c2 की वैल्यू थी माइनस c0 r प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x टू पावर r प्लस 2, c4 was c0 upon r plus 2 square minus n square and r plus 2 square, r plus 4 square minus n square and x to power r plus 4 and so on. So this can also be write as c0 xr 1 minus x square r plus 2 square minus n square plus x to power 4 r plus 2 square minus n square and r plus 4 square minus n square, इस तरह का कुछ टर्म मिलेगा, इस तरह से हमें कुछ मिलेगा सोल्यूशन, ऐसा ही होगा ना सोल्यूशन हमारा, ओके। तो सोल्यूशन हमारा इस तरह का होगा। अगर हम यहाँ पे देखिए दो सोल्यूशन मिल सकते हैं, अगर हमारे पास केस 1, जैसे फ्रोबेनियस में हम केस स्टडी करते थे, क्या थी, आर की वैल्यू जो है वो है n और माइनस n। अगर इनका डिफरेंस जो है वो हमारा एक नॉन इंटीजर है, ठीक है, इट मींस दैट व्हेन से दैट r1 इज n, r2 इज माइनस n, इफ r1 डिफरेंस r2 इज नॉट अ इंटीजर, तो आप जानते हो सबसे सिंपल केस बनेगा r इक्वल टू n के करस्पॉन्डिंग हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे जस्ट r सब्स्टिट्यूट करने पे, और r इक्वल टू माइनस n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार r इक्वल टू n सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सेकंड टाइम r इक्वल टू माइनस n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब उससे इसमें थोड़ा सा क्या होगा, एक मिनट, तो ये तो यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे लिख लिया, जनरल सोल्यूशन n के करस्पॉन्डिंग, देखो वन ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द BSL इक्वेशन इज लाइक दिस व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू n। देखो कोफिशिएंट हमारे ऐसे ही आ रहे हैं, r इक्वल टू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, n सब्स्टिट्यूट किया है, तो r इक्वल टू n सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ ऐसा बन रहा है क्या, एक सेकेंड अपना चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट r इक्वल टू n रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कितना देगा ये, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2n प्लस 4, 2n प्लस 4 बचेगा ना, n को हम बाहर ले लेते हैं, n स्क्वायर हो जाता, नहीं नहीं n नहीं, 2 को बाहर लेते हैं, हमारे पास हाँ 4 प्लस 4n बचेगा, 4 को बाहर ले लेंगे यानी 2 स्क्वायर
और हमारे पास आ जाएगा n+1। ठीक है, ऐसा ही कुछ कोफिशिएंट आ रहा है, थोड़ा सा टैली कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, इसी तरह का कोफिशिएंट आ रहा है। तो इस कोफिशिएंट को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब बार बार वहां से लिखने की बजाय हमने यहाँ पे लिख लिया है, या एक बार इसको चेक कर लेना सही होगा। चलिए यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो C0 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं R=n हियर। ये एक्सप्रेशन को कुछ नाम दे देते हैं, से दैट इट इज 5, आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर 5। So substituting in equation number 5, R=n, it will give you x⁴n 1 minus x square, and after solving this for R=n, this will give you 2 square n plus 1, okay, plus x⁴, ये एक्सप्रेशन तुम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, दैट वाज 2 स्क्वायर n plus 1, एंड फ्रॉम दिस सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, इसको भी इसी तरह सॉल्व करो। r+4² माइनस n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर दोनों से ही कैंसिल होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8n + 16, यही होगा ना, 8n + 16। तो ये होगा, कॉमन आएगा हमारा 8, यानी ये क्या होगा हमारे पास n + 2, और 2 टू पावर कितनी होगी 3, है ना, 2 की पावर हमारे पास हो जाएगी 3। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 4, ये टोटल है 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 को हमने लिखा है 2 टू पावर 4, एंड नेक्स्ट वाले 2 को लिख दिया फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब पैटर्न जानने के लिए हमें कम से कम एटलीस्ट एक और टर्म लिखना पड़ेगा। सीरीज का पैटर्न लिखना है अगर, तो हमें नेक्स्ट टर्म देखना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमने थर्ड टर्म इवेलुएट करने के बाद ही हम ये फैक्टोरियल 2 के फॉर्म में लिख पा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थर्ड टर्म माइनस में x⁴, इसका आप लोग बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा। आपका होगा n + 2² माइनस n स्क्वायर, n + 4² माइनस n स्क्वायर, एंड इन द थर्ड ब्रैकेट n + 6² माइनस n स्क्वायर। सॉल्व करके फाइनली बताओ क्या आएगा। पहले ब्रैकेट से तो ये निकलेगा हमारे पास 2 टू पावर 4, इस तरह से 2 टू पावर 4 फैक्टोरियल 2 n + 1 n + 2, और लास्ट ब्रैकेट से क्या आएगा बताओ। लास्ट ब्रैकेट आ रहा है 2 पावर 2 into 3, मतलब 6 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, तो 12 में 12 को क्या लिख सकते हैं 3 into 4, यानी 2 स्क्वायर, तो एक 2 स्क्वायर इसके साथ ऐड कर लेंगे, 2 टू पावर 6 हो गया, और इस 3 को इस 2 के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो फैक्टोरियल 3 हो गया। इसी वजह से हमने ये पैटर्न लिखा है, यहाँ 2 की पावर 5 ना लिख के 2 की पावर 4 into फैक्टोरियल 2 लिखा है। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक n + 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, से दैट इट इज इक्वेशन नंबर 6। हाँ 2 टू पावर 6, एक्चुअली मैंने पिछला टर्म लिख के फिर उसमें नया ऐड किया, चलिए इसको रफ करके लिख देते हैं। 2 टू पावर 6 फैक्टोरियल 3 n + 1 n + 2 n + 3 एंड सो ऑन। ओके, सो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, यहाँ पे एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल गया। अब बेसल फंक्शन हमें लिखना है, तो यहाँ पे बेसल फंक्शन के लिए जैसे वहां पे एक ऐसा Cn चूज करते थे कि हम Pnx लिख पाते थे एक सोल्यूशन, तो यहाँ पे इफ वी आर चूजिंग दिस C0 लाइक दिस 1/2 टू पावर n गामा n + 1, तो देन जो हमारा एक्सप्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, एंड वी आर डिनोटिंग इट बाय Jnx, उसको हम यहाँ पे Jnx से डिनोट करते हैं। C0 क्या चूज करें 1/2 टू पावर n फैक्टोरियल n + 1, सो फैक्टोरियल सॉरी गामा फंक्शन, क्योंकि रियल नंबर है ना। So we are choosing here Bessel function के टर्म में लिखने के लिए इस solution को we have to choose, because it is the arbitrary constant, we can choose it, so it will be 2 to power n gamma n plus 1। ठीक है, गामा n plus 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपने सोल्यूशन में, यानी एक्सप्रेशन नंबर क्या था 6 था, 6 x to power n 2 to power n gamma n plus 1, and rest of the series is 1 minus x square 2 square n plus 1 plus x to power 4 2 to power 4 factorial 2 n plus 1 n plus 2
and next term was x to power minus x to power 6, 2 to power 6 factorial 3, n plus 1, n plus 2, n plus 3 plus so on. ओके ये हमारे पास टर्म हो जाएंगे. सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड jnx. अगर हमने c नॉट की ये वैल्यू चूज की है तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इट इज डिनोटेड बाय jnx, which is called Bessel's function of first kind of order n. अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम चाहते हैं समेशन फॉर्म में लिख लें. चलिए समेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इसको. एक्चुअली ओके, n हमारा यहाँ पे वैल्यू ले रहा है xn, n plus 2 एंड सो ऑन. तो हम क्या ले लेते हैं, m लिख लेते हैं, m ही लिख लेते हैं या r लिख लें जो चाहे. हम यहाँ लिखते हैं m 0 to infinity. देखिए वैल्यू क्या रन कर रही है 1 2, ये वैल्यू रन कर रही है और साथ में x की पावर्स कर रही है. ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी सिंपली x टू पावर m प्लस r, यही होगी ना, x टू पावर m प्लस r. ये 2n रहना ही रहना है तो 2n गामा n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई ही होना है हर टर्म के साथ. फिर क्या होगा, 2 की पावर यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है 2 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 2 टू पावर 4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 2m. ठीक है, तो 2 पावर 2m. फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है यहाँ पे. हाँ, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल m. ओके, एंड नेक्स्ट देखो ये क्या आ रहा है हमारे पास, n प्लस, हम यहाँ पे mth टर्म लिख रहे हैं, एक्चुअली जनरल लिखने के लिए mth टर्म लिख रहे हैं. तो आप देखो फर्स्ट टर्म में n प्लस 1, इस टर्म में n प्लस 1 जहाँ पे m की वैल्यू 1 है. सेकेंड टर्म में n प्लस 2 तक गया है, थर्ड में n प्लस 3 तक गया है. और सॉरी एक गलती और की हमने, यहाँ पे 2m लिखना चाहिए था ना. अभी वो बाद में करेंगे, पहले ये एक्सप्रेशन लिख लें. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा n प्लस 1, n प्लस 2 एंड सो ऑन. कहां तक जाएगा, n प्लस m तक, ऐसा जाएगा ना. इसको देखिए गामा फंक्शन के साथ कंबाइन कीजिए. यू नो दैट n गामा n कैन बी राइट एज गामा n प्लस 1. ये होता है ना, गामा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, n गामा n इज गामा n प्लस 1. उसी का यूज कीजिए. n प्लस 1 गामा n प्लस 1 कैन बी राइट एज गामा n प्लस 2. n प्लस 2 इंटू गामा n प्लस 2 कैन बी राइट एज गामा n प्लस 3. तो ये यहाँ n प्लस m तक है, तो क्या लिख सकते हो इसको, गामा n प्लस m प्लस 1 लिख सकते हैं ना. सो दिस कैन बी राइट एज m 0 टू इंफिनिटी x टू पावर n प्लस 2m, 2 टू पावर n प्लस 2m फैक्टोरियल m, और इसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस m प्लस 1. ओके, अब तुम क्या बोल रहे थे. गामा में इसलिए लिया क्योंकि n हमारा कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंटीजर हो. ठीक है, ये एक रियल नंबर तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए गामा विल बी मोर जनरलाइज केस. ओके, तो एक मिनट, एक्सप्रेशन हमारा क्या आ रहा है फाइनली चेक कर लेते. हाँ, फैक्टोरियल m गामा m प्लस n प्लस 1. अच्छा, माइनस को इग्नोर कर दिया. देखिए हमने माइनस नहीं लिखा है, माइनस भी तो आएगा है ना. फर्स्ट टर्म में यहाँ पे है प्लस है, फिर माइनस है, अल्टरनेटिव माइनस साइन चल रहा है. इट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 टू पावर m. So this is the general expression for jnx. It is called Bessel function of first kind. ठीक, Bessel function of first kind of order n. ठीक है, ओके.
बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन। ओके, अब इसके लिए बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस एन के लिए बात करते हैं। तो इफ हमें जैसे पता है कि कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है और दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर नहीं है, तो सेकंड सोल्यूशन हमें मिलेगा j माइनस एन एक्स से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जे एन एक्स आपको पता है, एन की जगह माइनस एन सब्सटीट्यूट कर दोगे, j माइनस एन एक्स भी में आपको मिल जाएगा। जो जे एन एक्स का सोल्यूशन मिला है उसी में रिप्लेस कर दो एन को बाई माइनस एन, यू विल गेट द second linearly independent solution j minus nx. So complete solution will be in that case linear combination of this j n x and j minus nx. Okay, so if n is not an integer, then the general solution for the Bessel differential equation will be a j n x. यहाँ पे not an integer लिखने के बजाय इंटीजर नॉट an integer नहीं, इनका डिफरेंस नॉट an integer होना चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस अगर नॉट an integer है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा। अच्छा चलिए, अगर n इंटीजर हो जाता है उस केस में, ये नॉट इंटीजर हो और साथ में उनका डिफरेंस भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नॉन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ये n इंटीजर हो जाता है उस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा स्टडी करना। उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, कैसे होता है उसके लिए हम बाद में बात करते हैं। अच्छा सोल्यूशन है ये, सोल्यूशन के लिए बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको ये देखते हैं कि हम j अगर इंटीजर है तब क्या होगा। चलिए आते हैं हम हमारा jnx एक्सप्रेशन लिखते हैं। jnx क्या था हमारे पास, समेशन m गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू पावर m x टू पावर पहले यहाँ पे फैक्टोरियल m गामा n प्लस m प्लस 1 और 2 को इसके साथ ही लिख लेते हैं, है ना। क्या आ रहा था, n प्लस 2m, ये था हमारा jnx। ठीक, for suppose that here n is an integer, n is an integer, ये एक मान लीजिए केस है कि n हमारे पास एक इंटीजर है। डिफरेंस की बात अभी हम नहीं कर रहे, केवल इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर n हमारे पास एक इंटीजर है, क्योंकि अगर हम केवल नॉन इंटीजर की बात करें कि n हमारे पास नॉन इंटीजर है, तो ये केस ये भी आता है जब 1 और -2 लेता है, उस केस में इनका डिफरेंस क्या हो जाता है, हमारे पास एक इंटीजर आ जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा j माइनस एन एक्स एक इंडिविजुअल सोल्यूशन दे, दूसरा या ना दे, है ना, क्योंकि उस केस में हमारा C1 0 नहीं हो रहा है, वहां पे हमें सोल्यूशन अलग से निकालना पड़ेगा। तो इस केस को नहीं हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, हम बात करेंगे नॉट इंटीजर है और उनका डिफरेंस भी हमारे पास, जो उनका डिफरेंस है वो भी हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर n इज एन इंटीजर तब क्या होगा, जरा इसको देखते हैं। तो इफ n इज इंटीजर देन j माइनस एन एक्स is m 0 to infinity minus 1 to power m factorial m and gamma n plus m plus 1 x by 2 minus n plus 2m। हाँ ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू जो आ रही है इससे क्या फर्क पड़ेगा, j माइनस एन एक्स से इसमें यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, n की जगह क्या, अगर हमने माइनस n सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहीं n इसके साथ तो माइनस में चल नहीं रहा है, एक सेकेंड, अच्छा मैंने n को इंटीजर के लिए बात की है ना, 1 सेकेंड, हाँ तो पहले इंटीजर के केस में ये वैल्यू रख लेते हैं। तो इंटीजर के केस में हमारे पास ये जो होता है गामा n प्लस 1, वो होता है फैक्टोरियल n होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, jnx की वैल्यू हो जाएगी m 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू पावर m फैक्टोरियल m, और ये हो जाएगी फैक्टोरियल n प्लस m फैक्टोरियल x बाई 2, ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और z n इक्वल टू 0 के लिए करें ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है j नॉट जो फंक्शन है, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0,
इनका डायरेक्ट लैपलास ट्रांसफॉर्म भी पूछा जाता है और डायरेक्ट यूज भी होता है बहुत जगह पे इस फंक्शन का। तो जे नॉट सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 0 हियर, तो n इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि ऑर्डर 0 का बेसल फंक्शन, वो क्या होगा, m 0 टू इंफिनिटी -1 टू पावर m फैक्टोरियल m x to power x yes x by 2 to power 2m. This can also be write as summation m 0 to infinity -1 to power m factorial m square x by 2 to power 2m होगा। So this function is j naught x, Bessel function of order 0. Okay. तो जे नॉट की वैल्यू ही लिखा है, ऑर्डर 0 का फंक्शन लिखा हुआ है क्या है। सो यू नो दैट जे नॉट एक्स जब उसको एक्सपेंड करेंगे दैट कैन बी राइट एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टू पावर 2 फैक्टोरियल 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू पावर 4 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन हमारा यहाँ भी मिला, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए इस ये जो टर्म मिला इसको एक्सपेंड कीजिए, आप लोग करिए इस टर्म को, सीरीज को एक्सपेंड कीजिए, ऐसी आएगी 1 माइनस समथिंग करके, सेम सीरीज आ रही होगी, सेम आ रही। ओके तो हम इसको यहीं पे कंसीडर कर रहे हैं, एक सेकेंड। सो यू कैन सी हियर, अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो जे नॉट एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें 1 पे, तो इट मीन जे नॉट एक्स कट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट x इज 0। ओके एंड अब इसका जो है ना, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे ये कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो शायद इसका फिगर मैंने डाला, ये हमारा जे नॉट एक्स है और J1 एक्स है, ठीक है। इट इज जे नॉट एक्स इज डिनोटेड बाय दिस येलो लाइन, ठीक है। J1 एक्स इज लाइक दिस, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, 1 पर कट कर रहा है इसको, एक्स एक्सेस को, जे नॉट एक्स वाई एक्सेस को यहाँ पे कट कर रहा है, इधर से पास हो रहा है, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू है ना, ये इसको जब प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमने यहाँ तक प्लॉट किया, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एज वैल्यू ऑफ दिस x इज इंक्रीजिंग, जो हमारा ये फंक्शन है इट्स एम्पलीट्यूड या क्या है, ये फंक्शन इज डिके हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है एज x इज इंक्रीजिंग। यू कैन सी दैट इट इज इन ऑक्सीलेटिंग इन नेचर इसका ऑक्सीलेटिंग है। अब केवल हम वहां से देख के नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज के अंदर कुछ टर्म हमारे पास साइन जो है अल्टरनेट साइन चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स टू पावर 6, ठीक है। तो उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या आएगी हमें टर्मिनेट करके तब चेक करना पड़ेगा। इनफाइनाइट सीरीज है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ टर्म तक उसको टर्मिनेट करके तब करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इसका अगर ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है तो ये ग्राफ जो है उससे हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है कैसा है कि जे नॉट जो है वो वाई एक्सेस को 1 पर कट कर रहा है, उसके बाद कैसा है इसका बिहेवियर, इट इज ऑक्सीलेटिंग इन नेचर एंड डिकेइंग एज एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। जैसे जैसे एक्स को बढ़ेगा इट विल बी अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। तो as x is approaching to infinity, this value of j naught x is approaching to 0, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ है। 1 सेकेंड, previous slide. So its graph is oscillate and decay in nature, and its maximum value is, क्योंकि decay in the nature है तो maximum value इसकी कहाँ पे मिल रही है हमारे पास, 1 पे मिल रही है। So this is the magnitude, it is bounded between plus and minus 1. Okay, फिर इसी तरह बेसल इक्वेशन सेकंड पॉइंट ग्राफ से ही उसको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तभी सेकंड पॉइंट कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसको हम निकाल पाएंगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकाला है कि एक्स एक्सिस को 2.828 पे कट कर रहा है, लेकिन उसके लिए यही है कि आप इस सीरीज को टर्मिनेट करिए आफ्टर सम फाइनाइट टर्म। फाइनाइट टर्म्स के बाद टर्मिनेट करने के बाद आप 0 से इक्वेट करोगे तभी आपको मिलेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ओके वैसे मैंने वो सब मैथमेटिका से इवैल्यूएट किया है। ओके सो ये आपके पास इसी तरह J1 x क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे J1 x आ जाएगा, इसी बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर
1 एंड फॉर x इक्वल टू 0 की इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगी 0 हो जा रही है। ठीक है, इसको आप चेक करोगे, इसका नेचर भी ऐसा ही है। अब हमें ये मेन हम ये जो बताना चाहते थे, ये व्हेन n इज अ इंटीजर jnx एंड माइनस jnx j माइनस nx दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं किस तरह से, यहां से ये देख सकते हो, इसकी वैल्यू हो जाती है j माइनस एक्स इक्वल टू -1 टू पावर n j n x। अच्छा, हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ये एक्सप्रेशन लिखा था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि n प्लस आर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ दिस m की जगह पे हम यहाँ पे n प्लस आर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। चलिए, हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 1 सेकेंड, n was integer then jnx is m 0 to, यहाँ पे n इंटीजर है, n is integer, jnx is -1 to power m फैक्टोरियल m स्क्वायर था, नो m इंटू फैक्टोरियल n प्लस m फैक्टोरियल, ओके, एंड x by 2 to power 2m minus n प्लस था, यस, वो माइनस में हमारे पास आएगा, माइनस jnx क्या हो जाएगा, माइनस jnx के केस में हम यहाँ पे इस फैक्टोरियल का यूज नहीं करेंगे, गामा फंक्शन का ही करेंगे, क्योंकि गामा फंक्शन ये फैक्टोरियल केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिखा जा सकता है। तो फैक्टोरियल m गामा n प्लस m प्लस 1 x बाई 2m माइनस n, ये हमने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं क्योंकि गामा के अंदर आ रहा है निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन आपको पता है कि गामा की वैल्यू अगर निगेटिव हो, टोटल वैल्यू निगेटिव हो, तो क्या होता है, इन्फिनिटी रख देते हैं, माइनस गामा जो होता है वो वहां पे इन्फिनिटी होता है, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी का मतलब टर्म क्या हो जाएगा, वो टर्म जीरो कंट्रीब्यूट करेगा इस सीरीज में, है ना। सो हमें चेक करना है कि इसको इसलिए सब्स्टिट्यूशन लिया गया है। अब इसका मतलब कि गामा हमारा जो है n प्लस m प्लस 1, ये जो टर्म है, ये टर्म हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, तो यहां से हम m को क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिया है वो क्या लिया है, m इक्वल टू n प्लस आर, m इक्वल टू n प्लस आर, ओके, n प्लस आर अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ये देखिए, लेट m इक्वल टू n प्लस आर, सो समेशन विल बी, दिस समेशन विल बी, m की जगह पे अगर हम n प्लस आर रखते हैं तो क्या होगा, r गोइंग फ्रॉम माइनस n टू इंफिनिटी, m की वैल्यू जब 0 होगी तो n हमारे पास जो ये r की वैल्यू है वो क्या होगी, -n, और अगर m इंफिनिटी है तो इट मींस दैट r इज ऑब्वियसली इंफिनिटी ही होगा उस केस में, तो r समेशन गोइंग फ्रॉम r माइनस n टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे m की जगह पे सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -1 टू पावर m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की जगह पे n प्लस आर फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर n प्लस आर रखेंगे तो क्या होगा, r प्लस 1, गामा में ये गामा माइनस n प्लस m प्लस 1, इसमें m की जगह पे n प्लस आर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल गिव यू गामा r प्लस 1, ओके, एंड x बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2r माइनस n, यानी कि 2r प्लस n, that can be write as 2r plus n, ओके। अब आप देखिए यहाँ से ये सीरीज जब स्टार्ट होगी, यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया है r इक्वल टू माइनस n। अब r इक्वल टू माइनस n का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं r इज माइनस n,
तो यानी r की वैल्यू स्टार्ट होगी -n से, देन गोइंग फ्रॉम नेक्स्ट विल बी n+1 -n+2 एंड सो ऑन, देन 0 आएगा, फिर हमारे पास पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे, है ना। हाँ, तो इंफिनिटी की तरफ ही तो जाएगा समेशन। देखो r बीच में 0 नहीं आएगा, r की वैल्यू जो है ना वेरी कर रही है, -n+1 नहीं, आप यहां से n की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, आप इधर से चढ़ते हो तो क्या होगा, अच्छा एक मिनट, हाँ 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 सही कह रहे हो, नंबर हमारा इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होते जाते हैं, यस दैट शुड बी -1। ओके, ये टर्म्स होंगी, ठीक है। अब आप देखो यहां तक, जो यहां से लेके यहां तक टर्म्स हैं, उनमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू है ये देखो, n+r को जब सॉल्व करोगे, n+r को सॉल्व करोगे, जब r की वैल्यू क्या है हमारे पास -n, ठीक है, r की वैल्यू -n है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, है ना, यही होगा। फिर r की वैल्यू जब तुम्हारे पास ये आ रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अच्छा इसको भी तो चेंज करना है, सॉरी इसको भी चेंज करना है, m = m + n+r, n+r। ओके, एक्चुअली हम चाहते क्या है, जैसा हमने JNX लिखा था वैसे ही इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो -1 टू पावर n तो हमने बाहर लिख लिया, समेशन हो गया r -n टू इंफिनिटी -1 टू पावर r गामा फैक्टोरियल n+r r+1 x/2 n+2r, बाकी सब सही, ठीक है। अब यहां से देखिए कि क्या हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए कि ये किसी वजह से क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है r की इन वैल्यूज के लिए, डिनोमिनेटर इसमें से किसी के लिए भी 0 नहीं हो रहा है, एक्चुअली हमारे पास बचना यही चाहिए 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये सारे टर्म जो है ना 0 हो जाने चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग, तभी हम ये समेशन लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी, तभी ये टर्म हम लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी। ओके, ये देख सकते हो तुम, गामा यहाँ पे लिखा है r+1, ठीक है, गामा इज r+1। अब r की वैल्यू जब आप रखते हो -n, तो ऑब्वियस है -n+1 कैसा होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, गामा r+1 है, r की वैल्यू अगर -n रखते हैं तो n-n+1 ये आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, टोटल n की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इंफिनिटी मींस इट विल बी 0, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू कहां तक चलेगी, -1 अगर होगा तो गामा 0 आ रहा है, गामा 0 भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारा इस टर्म का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो -1 तक हम सारे टर्म्स क्या कर सकते हैं, इसके डिस्कार्ड कर सकते हैं, हमारे टर्म्स कहां से स्टार्ट होंगे, जहां r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो फिर से अभी लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि इसके पहले जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। तो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 टू पावर n -1 टू पावर r, क्या आ रहा था हमारा, फैक्टोरियल में था n plus r factorial, okay, and that was gamma r+1 x/2 to power n+2r, यही था, n+2r आ रहा था,
ठीक है, सो दिस वाज n प्लस 2r। अब आप देखो इस गामा r प्लस 1, r की वैल्यू क्या है 0 टू इंफिनिटी, तो ये कैसा है, एक हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, r की वैल्यू नॉन निगेटिव इंटीजर ही तो ले रही है, 0 ले रही है, 1 ले रही है, 2 ले रही है, सो ऑन। r की वैल्यू समेशन में क्या है, 0 से स्टार्ट है, इंफिनिटी तक है, तो r 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, तो r कैसी वैल्यू ले रहा है, r इज टेकिंग नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यूज। तो नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यूज के लिए गामा r प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r लिख सकते हैं ना। सो दिस कैन बी राइट एज -1 टू पावर n r 0 टू इंफिनिटी -1 टू पावर r n प्लस r फैक्टोरियल r x by 2 टू पावर n प्लस 2r। ओके, होगा। अब r कैसा है, चाहे m लिखें चाहे r लिखें, दे आर डेमी इंडेक्स, डमी वेरिएबल है ना यहाँ पे r, तो इसको चाहे m लिखें चाहे r लिखें, ये है क्या, jnx ही तो है, अगर n इंटीजर है इट इज jnx, तो -1 टू पावर jnx, सो j माइनस nx, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बाकी के केस हम यहाँ पे कंसीडर कर पाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। j माइनस nx इज इक्वल टू -1 टू पावर n jnx, तो अगर n हमारा इंटीजर है तो j माइनस nx इज नॉट गिविंग a different function, it is actually -1 to power n times of jnx। और जब हम किसी फंक्शन को इस तरह से लिख सकें, अगर एक फंक्शन gx है दूसरा फंक्शन fx है एंड gx इज जस्ट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ fx, तो gx एंड fx आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट का यही होता है ना। तो ये क्या होगा उस केस में, j माइनस nx जो है वो हमें कोई नई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो उस केस में हमें जो इसके इनिशियल रूट निकल रहे हैं r इक्वल टू n और माइनस n, उसकी वजह से हमें केवल एक ही एलआई सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा एलआई सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे हम फ्रोबेनियस मेथड में निकालते थे r के रिस्पेक्ट में, जो हमारा लिखते थे ना, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे x टू पावर n प्लस m लिख रहे थे, तो m के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इनिशियल रूट क्या रखना पड़ेगा, सेम r इक्वल टू n, तब आपको सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और उस सीरीज को बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड भी बोलते हैं, कहीं कहीं न्यूमैन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब बताओ कोई क्वेश्चन था तुम्हारा, कह रहे क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, अच्छा ठीक है। थैंक यू मैम।